السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے اس اردو ادب کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ساتھیوں، اگر ہمیں منزل کی خواہش ہے، ہم منزل کی تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، تو لازمی ہے کہ ہم اس کے لیے، اپنی منزل کے لیے خود کو کھپائیں، خود کو محنت کے جانب لگا دیں۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے، ساتھیوں آپ میری اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس دنیا کے اندر میں جس نے بھی جس قدر محنت کی ہے، کامیابی اسی قدر حاصل کی ہے۔ یاد رکھیں گے، کامیابی اسی کو ملتی ہے جس نے اس دنیا کے اندر محنت کی ہے۔ ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، اور ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، مشقت کریں۔ انشاءاللہ العظیم اگر ہم محنت کریں گے تو کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ ساتھیوں، آج کے اس اردو ادب کی کلاس کے اندر میں آپ کو سید احتشام حسین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سید احتشام حسین، ساتھیوں جس کا اردو ادب میں ایک نمایاں مقام ہے، ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ سید احتشام حسین اعظم گڑھ کے ایک گاؤں، ساتھیوں جس گاؤں کا نام ہے ماحول، ماحول میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1912 عیسوی میں سید احتشام حسین، ساتھیوں ان کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی۔ اعظم گڑھ اتر پردیش میں ہے۔ ساتھیوں سید احتشام حسین کی پیدائش اتر پردیش کے اعظم گڑھ میں ہوئی۔ ساتھیوں اعظم گڑھ ایک ضلع ہے، اعظم گڑھ ایک ضلع ہے جہاں پر دارالمصنفین قائم ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے، سید احتشام حسین اعظم گڑھ کے ایک گاؤں ماحول میں پیدا ہوئے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے سید احتشام حسین کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی، ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1912 عیسوی میں۔ اور کہاں پر ہوئی تھی؟ اعظم گڑھ میں۔ اعظم گڑھ میں، اعظم گڑھ اتر پردیش کا ایک ضلع ہے۔ ساتھیوں یاد رکھیں گے، اور ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1972 عیسوی میں۔ ساتھیوں کہاں پر ہوئی تھی؟ الہ آباد میں الہ آباد میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ الہ آباد بھی اتر پردیش کے اندر میں ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے، سید احتشام حسین اعظم گڑھ کے ایک گاؤں ماحول میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1912 عیسوی میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1912 عیسوی میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ساتھیوں اتر پردیش کا ضلع ہے۔ ساتھیوں جس ضلع کا نام ہے، یاد رکھیں گے آپ، اس ضلع کا نام ہے اعظم گڑھ۔ اعظم گڑھ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ساتھیوں کب پیدا ہوئے؟ 1912 عیسوی میں۔ اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 1972 عیسوی میں۔ ساتھیوں کہاں پر ہوئی تھی؟ الہ آباد اتر پردیش میں۔ یاد رکھیں گے آپ۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے، سید احتشام حسین صاحب نے اعلیٰ تعلیم اعظم گڑھ اور الہ آباد میں ہی حاصل کیا تھا۔ یاد رکھیں گے آپ، سید احتشام حسین صاحب نے اعلیٰ تعلیم کہاں پر حاصل کی ہے؟ سید احتشام حسین نے اعلیٰ تعلیم اعظم گڑھ اور الہ آباد میں حاصل کیے۔ ابتدا میں افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ نظم اور غزلیں بھی لکھے ہیں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے، ابتدا میں افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ نظمیں اور غزلیں بھی لکھتے رہے ہیں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے، ابتدا میں ڈرامہ نویسی اور نظمیں اور غزلیں بھی لکھتے رہے، اور 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے MA کیا۔ ساتھ امتحانات کے اندر یہ پوچھے جاتے ہیں کہ 1936 عیسوی میں الہ آباد یونیورسٹی سے MA کیا، اور اس عیسوی میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد مقرر ہوئے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے، ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1912 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1912 عیسوی میں۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ اعظم گڑھ اتر پردیش میں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے، ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1972 عیسوی میں۔ کہاں پر؟ الہ آباد اتر پردیش کے اندر میں۔ ابتدا میں افسانہ نگاری، ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ نظمیں اور غزلیں بھی لکھتے رہے ہیں۔ ساتھیوں میں آپ کو مزید علم کے لیے بتا رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیے کہ ابتدا میں سید احتشام حسین صاحب افسانہ نگاری بھی کرتے تھے اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ نظمیں اور غزلیں لکھتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 1936 عیسوی میں الہ آباد یونیورسٹی سے MA کیا۔ اگر امتحانات کے اندر آپ سے پوچھا جائے کہ سید احتشام حسین صاحب نے
किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो साथियों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। और 1938 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के, साथियों किस यूनिवर्सिटी के? लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उस्ताद मुकर्रर हुए। साथियों आप याद रखेंगे 1938 ईस्वी में सैयद एहतसाम हुसैन साहब का लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में इनका तकर्रुर हुआ उस्ताद की हैसियत से। याद रखेंगे आप सैयद एहतसाम हुसैन ने जॉन बीम्स की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा किया। साथियों उस किताब का नाम है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। साथ इसी नाम से उन्होंने जॉन बीम्स की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा किया। साथियों मैं आपको मज़ीद इल्म के लिए बता रहा हूँ, सैयद एहतसाम हुसैन साहब ने जॉन बेम्स की किताब, साथियों ये अंग्रेजी किताब थी जिसका इन्होंने तर्जुमा किया। किस नाम से तर्जुमा किया? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। साथियों अगर कोई आपसे पूछे हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसने लिखा, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसने लिखा है? साथियों ये सैयद एहतसाम हुसैन साहब की किताब है, ये तर्जुमा शुदा किताब है। सैयद एहतसाम हुसैन ने जॉन बीम्स की अंग्रेजी किताब, साथियों किनकी किताब? जॉन बीम्स की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के नाम से किया। और याद रखेंगे आप सैयद एहतसाम हुसैन ने 1952 ईस्वी में अमेरिका और इंग्लिस्तान का भी सफर किया। याद रखेंगे 1952 ईस्वी में अमेरिका और इंग्लिस्तान का भी सफर किया। साथियों आप याद रखेंगे सैयद एहतसाम हुसैन आजमगढ़ के एक गांव माहौल में पैदा हुए। कहां पर पैदा हुए? माहौल में। कभी कभी इम्तहानात के अंदर ये पूछे जाते हैं सैयद एहतसाम हुसैन की जाय पैदाइश कहाँ है? साथियों जाय पैदाइश आजमगढ़ है, जाय पैदाइश आजमगढ़ है। आजमगढ़ के अंदर में साथियों एक गांव है जिस गांव का नाम है माहौल। आजमगढ़ एक जिला है, आजमगढ़ एक जिला है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इसी तरीके से आप याद रखेंगे इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। और इनकी वफात कब हुई? 1972 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में। साथियों एहतसाम हुसैन की वफात 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। साथियों आप याद रखेंगे आला तालीम आजमगढ़ और इलाहाबाद में यहाँ हासिल किए। सैयद एहतसाम हुसैन ने आला तालीम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में यह हासिल किए। इसी तरीके से आप याद रखेंगे इब्तिदा में अफसाना निगारी और ड्रामा नवीसी के साथ साथ नज़में और गजलें भी लिखते रहे। 1936 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। साथियों इस इबारत का गौर से सुनिए 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया और 1938 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उस्ताद की हैसियत से 1938 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उस्ताद की हैसियत से मुकर्रर हुए। साथियों इसी तरीके से आप याद रखेंगे सैयद एहतसाम हुसैन ने जॉन बीम्स की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा किया। साथियों किस नाम से तर्जुमा किया? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। अगर कोई आपसे पूछे तर्जुमा शुदा किताब हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसने लिखा? साथियों अगर कोई आपसे पूछे तर्जुमा शुदा किताब हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी तख्लीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए सैयद एहतसाम हुसैन साहब की तख्लीक है। कोई आपसे पूछे तर्जुमा शुदा किताब, साथियों जिस किताब का नाम है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, साथियों इसको किसने लिखा है? सैयद एहतसाम हुसैन ने। इसको किसने लिखा है? सैयद एहतसाम हुसैन ने। जॉन बीम्स की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है, जॉन बीम्स की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है जिसका नाम सैयद एहतसाम हुसैन साहब ने रखा। क्या रखा? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। याद रखेंगे आप सैयद एहतसाम हुसैन साहब ने 1952 ईस्वी में अमेरिका और इंग्लिस्तान का भी सफर किया। साथियों मोटी मोटी बात यही है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों एक जिला है आजमगढ़, आजमगढ़ के अंदर एक गांव है माहौल, उसी जगह उनकी पैदाइश हुई थी। इनकी वफात कब हुई? 1972 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। साथियों इसी तरीके से आप याद रखेंगे। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप सैयद एहतसाम हुसैन के बारे में बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। साथियों अब मैं आपको सैयद एहतसाम हुसैन साहब की तसनीफात से रूबरू कराता हूँ। साथियों याद रखेंगे अफसानों का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है वीराने। ये तसनीफ है सैयद एहतसाम हुसैन साहब की। वीराने ये अफसानों का मजमुआ है। साहिल और समंदर ये एक सफरनामा है। अगर आपसे पूछे साहिल और समंदर, साहिल और समंदर किसकी तख्लीक है? साथियों ये सैयद एहतसाम हुसैन साहब की तख्लीक है। ये एक सफरनामा है। इसी तरीके से बच्चों के लिए भी इन्होंने एक किताब लिखी है उर्दू की कहानी, बच्चों के लिए किताब है उर्दू
साथियों, अगर कभी इम्तहानात के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए बच्चों की कहानी ये किताब किसकी तख्लीक है, जवाब आपका होना चाहिए सैयद एहतसाम हुसैन की तख्लीक है। साथियों, ये किताब बच्चों के लिए बिलखुसूस लिखा गया है। इसी तरीके से अफसानों का एक मजमुआ है साथियों, बहुत ही फेमस है, इसका नाम है वीराने। अगर कोई आपसे पूछे अफसानवी मजमुआ, साथियों अफसानवी मजमुआ वीराने किसकी तख्लीक है, साथियों जवाब होना चाहिए सैयद एहतसाम हुसैन का। साथियों, ये अफसानों का मजमुआ है। साहिल और समंदर यह सफरनामा है, साहिल और समंदर ये सफरनामा है सैयद एहतसाम हुसैन साहब की उर्दू की कहानी, ये बच्चों के लिए है। इसी तरीके से साथियों, हिंदी में उर्दू अदब की तारीख, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसी तरीके से हिंदी में उर्दू अदब की तारीख। साथियों, हिंदी में उन्होंने उर्दू अदब की तारीख को किस नाम से लिखा है, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगर कोई आपसे पूछे उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी तख्लीक है, साथियों फिर भी आपका जवाब होना चाहिए सैयद एहतसाम हुसैन। हिंदी में उर्दू अदब की तारीख, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, याद रखेंगे साथियों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी तख्लीक है किनकी, सैयद एहतसाम हुसैन साहब की। तनकीदी जायजे, साथियों याद रखेंगे, मैं आपको तसनीफात से रूबरू करा रहा हूँ। तनकीदी जायजे, रिवायत और बगावत, अदब और समाद, तनकीदी और अमली तनकीद, शऊर, ज़ौक़, अदब और शऊर, इफ़कार और मसाइल, एतबार नजर वगैरह। साथियों, ये तसनीफात हैं सैयद एहतसाम हुसैन की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप गौर से सुनेंगे। साथियों, अगर आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी बात समझ में आएगी। तसनीफात में वीराने, अगर कोई आपसे पूछे अफसानों का मजमुआ वीराने किसकी तख्लीक है, साथियों अगर कोई आपसे पूछे वीराने जो अफसानों का मजमुआ है ये किसकी तख्लीक है, सैयद एहतसाम हुसैन साहब की तख्लीक है। साथियों, इसी तरीके से सैयद एहतसाम हुसैन साहब का एक सफरनामा है जिसका नाम है साहिल और समंदर। सैयद एहतसाम हुसैन साहब ने एक सफरनामा लिखा जिसका नाम है साहिल और समंदर। ये इनके अफसाने हैं। ये सैयद एहतसाम हुसैन साहब के सफरनामे हैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए भी उन्होंने किताब लिखी है साथियों, उर्दू की कहानी, उर्दू की कहानी बच्चों के लिए बिलखुसूस है। ये भी सैयद एहतसाम हुसैन साहब की तसनीफ है। इसी तरीके से हिंदी में उर्दू अदब की तारीख को साथियों उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से लिखा है। साथियों याद रखेंगे आप, हिंदी में उर्दू अदब की तारीख को उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से लिखा है। तनकीदी जायजे, साथियों आप याद रखेंगे सैयद एहतसाम हुसैन साहब का जो असल मैदान है साथियों वो मैदान का नाम है तनकीद। तनकीदी मैदान के हीरो हैं सैयद एहतसाम हुसैन साहब का जो असल मैदान है साथियों वो मैदान तनकीद है। याद रखेंगे आप, हिंदी में उर्दू अदब की तारीख को साथियों उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से लिखा है। तनकीदी जायजे साथियों सैयद एहतसाम हुसैन साहब की तसनीफ है। इसी तरीके से रिवायत और बगावत, रिवायत और बगावत, अदब और समाद, अदब और समाद, तनकीदी और अमली तनकीद, तनकीदी और अमली तनकीद। इसी तरीके से ज़ौक़ अदब और शऊर, ज़ौक़ अदब और शऊर, अफ़कार व मसाइल, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, एतबार नज़र वगैरह साथियों इनकी तसनीफ है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे सैयद एहतसाम हुसैन का असल मैदान तनकीद है। सैयद एहतसाम हुसैन का असल मैदान तनकीद है। सैयद एहतसाम हुसैन साहब बहुत बड़े तनकीद निगार हैं। साथ इसे आप अपने जहन में बिठा लीजिए। सैयद एहतसाम हुसैन शुरू से ही तरक्की पसंद तारीख से वाबस्ता रहे। अगर कोई आपसे पूछे सैयद एहतसाम हुसैन साहब किस तारीख से वाबस्ता रहे, अगर इम्तहानात के अंदर ये पूछ लिए जाए आपसे सैयद एहतसाम हुसैन साहब किस तारीख से वाबस्ता रहे तो साथियों तरक्की पसंद तारीख से शुरू से ही वाबस्ता रहे। इसे अपने जहन में आप बिठा लेंगे। सैयद एहतसाम हुसैन साहब शुरू से ही तरक्की पसंद तारीख से वाबस्ता रहे। जैसा कि मैंने आपको इनके तसनीफात से रूबरू कराया, साथ में इनके तसनीफात में वीराने जो अफसानों का मजमुआ है, अगर कोई आपसे पूछे सैयद एहतसाम हुसैन साहब का अफसानों का मजमुआ कौन है साथियों, तब आपका जवाब होना चाहिए अफसानों के मजमुआ में साथियों इनका नाम है वीराने। वीराने अफसानों का मजमुआ है। साहिल और समंदर ये सफरनामा है सैयद एहतसाम हुसैन साहब का। साहिल और समंदर सफरनामा है और बच्चों के लिए भी इन्होंने बिलखुसूस एक किताब लिखी है जिसका नाम है, याद रखेंगे आप, उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी बिलखुसूस बच्चों के लिए लिखी गई है। साथियों इसके लिखने वाले हैं सैयद एहतसाम हुसैन साहब। साथियों अगर कोई आपसे पूछे सैयद एहतसाम हुसैन साहब की पैदाइश
कब और कहाँ हुई थी? सैयद एहतसाम हुसैन साहब की पैदाइश 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में हुई थी। साथियों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ के अंदर एक गांव है जिस गांव का नाम है माहुल, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी। और वफात से मुतालिक मैं आपको बताऊं, 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। कहां पर हुई थी? इलाहाबाद के अंदर में। साथियों, आप याद रखेंगे 1936 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किए। अगर कोई आपसे पूछे सैयद एहतसाम हुसैन साहब ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, उम्मीद करता हूं कि सैयद एहतसाम हुसैन साहब के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों, मैं आपको सरसरी निगाह से फिर बताऊं, सैयद एहतसाम हुसैन साहब एक तनकीद निगार हैं। सैयद एहतसाम हुसैन साहब साथियों, जिनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में आजमगढ़ के एक गांव माहुल में हुए। सैयद एहतसाम हुसैन साहब आजमगढ़ के एक गांव माहुल में पैदा हुए। इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई। और वफात से मुतालिक मैं बताऊं, 1972 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी वफात हुई। साथियों, पैदाइश और वफात दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर है। आला तालीम आजमगढ़ और इलाहाबाद में हासिल किया। इब्तिदा में अफसाना निगारी और ड्रामा नवेशी के साथ नज़्में और गजलें लिखते रहे। साथियों, आप इस बात को अपने नजर में बिठा लेंगे। इब्तिदा में अफसाना निगारी और ड्रामा नवेशी के साथ साथ नज़्में और गजलें लिखते रहे। और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। और 1938 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उस्ताद मुकर्रर हुए। इसी तरीके से साथियों, आप याद रखेंगे सैयद एहतसाम हुसैन ने जॉन बीम्स की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा किया है। और किस नाम से तर्जुमा किया? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपसे पूछे हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसने लिखा, साथियों आपका जवाब होना चाहिए सैयद एहतसाम हुसैन साहब ने। जॉन बीम्स की अंग्रेजी किताब का यह तर्जुमा है जिसका नाम रखा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। इसी तरीके से सैयद एहतसाम हुसैन साहब 1952 ईस्वी में अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफर किया। याद रखेंगे आप, 1952 ईस्वी में सैयद एहतसाम हुसैन साहब ने अमेरिका और इंग्लिस्तान का भी सफर किया। और इनकी तसनीफात के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, अफसानों का मजमुआ है वीराने। सैयद एहतसाम हुसैन साहब के एक अफसानवी मजमुआ है जिसका नाम है साथियों वीराने। इसी तरीके से एक सफरनामा भी है जिसका नाम है साहिला और समंदर। साहिला और समंदर। और बच्चों के लिए बिलखुसूस इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी बिलखुसूस बच्चों के लिए है। साथियों, सैयद एहतसाम हुसैन साहब का असल मैदान तनकीद का मैदान है। तनकीदी मैदान के हीरो हैं। हिंदी में उर्दू अदब की तारीख को उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से लिखा है। इससे आप याद रखेंगे, अगर इम्तहानात के अंदर आपसे पूछे जाएं कि उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी किताब है, जवाब होना चाहिए सैयद एहतसाम हुसैन साहब का। इसी तरीके से तनकीदी जायजे, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीदी और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र वगैरह। साथियों, ये सारे तसनीफात जिसका मैंने आपको अभी नाम बताया, ये सैयद एहतसाम हुसैन साहब की है। याद रखेंगे आप, सैयद एहतसाम हुसैन साहब का असल मैदान तनकीद है। सैयद एहतसाम हुसैन साहब तनकीदी मैदान के हीरो हैं। साथियों, इस बात को आप अपने ज़हन में बिठा लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमेशा काम आएगी ये बातें। साथियों, सैयद एहतसाम हुसैन साहब का असल मैदान तनकीदी मैदान है। सैयद एहतसाम हुसैन साहब शुरू से ही तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े रहे। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप सैयद एहतसाम हुसैन साहब के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों, आज के क्लास के अंदर सैयद एहतसाम हुसैन साहब के बारे में आपको तफसील से बताया गया। उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को बड़े गौर से देखा होगा, समझा होगा। साथियों, फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आई, साथियों आप कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आपके कमेंट से मुतालिक आगे के क्लास में तफसील से गुफ्तगू की। साथियों, आज के क्लास के अंदर सैयद एहतसाम हुसैन साहब के बारे में आपको तफसील से बताया गया, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया, उनकी तसनीफात से रूबरू कराया गया। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आई, साथियों आप कमेंट करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीम आगे के क्लास में आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में मजीद शेयर कर दीजिए ताकि मजीद तलबा भी इससे फ़वाइद हासिल कर सकें।
साथियों, अब मैं आपसे आखिर में मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, इस चैनल से पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं, तो साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मजीद तलबा भी इससे फवायद हासिल कर सकें। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखेंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और अहम है। साथियों, इस वीडियो के अंदर ये जो मवाद आपको पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, समझाए गए हैं, ये सारे मवाद एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर मुश्तमिल है, जो इम्तहानात के नजरिया से काफी अहम और खास है। साथियों, मैं उसी चीज को पढ़ाना मुनासिब समझता हूँ जो इम्तहानात के अंदर पूछे जाएं। साथियों, मेरा जो भी क्लास हो रहा है वो सारे क्लास एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर मुश्तमिल है, जो इम्तहानात के लिए काफी अहम और खास है। साथियों, आप याद रखेंगे। साथियों, अब दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत ही जल्द दूसरी क्लास के साथ मिलता हूँ, नए क्लास के साथ, नए उन्वान के साथ और नए जोशो खरोश के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। खुदा हाफिज।